بلیٹن میں خوش آمدید۔ لندن میں اہم بیٹھک، 2 دن میں 4 ملاقاتیں آغاز کریں گے۔ اسی خبر سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی لیگی قائد میاں محمد نواز شریف سے چوتھی ملاقات میں آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق اہم مشاورت ہوئی ہے۔ وقت سے پہلے نام ظاہر نہ کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ نواز شریف نے پی ٹی آئی مارچ کو نظر انداز کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کا مشورہ دیا۔ وزیر اعظم نے وطن واپسی پر اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے لیے ہم خیال رہنماؤں کا اجلاس بلا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں ہوئی لیگی قائد سے چوتھی ملاقات۔ رواں ماہ ہونے والی تعیناتی سے متعلق اہم مشاورت کی گئی۔ فیصلہ ہوا کہ وقت سے پہلے کوئی نام ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ نواز شہباز ملاقات میں یہ بھی طے پایا کہ پی ٹی آئی کے مارچ کو نظر انداز کیا جائے، کوئی رد عمل نہ دیا جائے۔ نواز شریف نے وزیر اعظم کو ہدایت دی کہ ساری توجہ معاشی بحران سے نمٹنے پر لگائی جائے۔ یہ مشورہ بھی دیا کہ الیکشن مقررہ مدت پر ہی کرائے جائیں۔ وزیر اعظم نے لندن سے واپسی کے موقع پر ہم خیال رہنماؤں کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہباز شریف نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیں گے۔ اجلاس میں اہم قومی اور سیاسی امور پر مشاورت کے علاوہ شہباز شریف حکومت کے اتحادیوں کو لیگی قائد سے ہونے والی مشاورت سے بھی آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم نواز شریف اور شہباز شریف کی اہم ملاقاتوں کی مزید تفصیل جانتے ہیں کوثر کاظمی سے۔ جی بالکل، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کا فائنل راؤنڈ تھا، چوتھا راؤنڈ تھا میٹنگ کا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے۔ اس میٹنگ کے اندر مریم نواز صاحبہ اور فیملی کے جو دیگر افراد تھے وہ بھی شریک تھے، جبکہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ویڈیو لنک کے ذریعے آج کی مشاورت میں حصہ لیا۔ آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے کہ جو نام تھے سینئر موسٹ یا کوئی اور، اس نام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایک نام کا فیصلہ ہو چکا ہے، میاں نواز شریف نے اس پہ اپنی ظاہر کر دی ہے، تاہم پی ڈی ایم کے ساتھ مشاورت کے بعد اس کا اعلان کیا جائے گا۔ عمران خان کے لانگ مارچ کو لے کر جب بات کی گئی تو میاں نواز شریف کا لہجہ سخت ہو گیا۔ انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا کہ کسی صورت بھی کسی گروہ کا جو سربراہ ہے جو جتھا لے کر آئے گا اس کی تجاویز نامہ مطالبوں پر کسی صورت غور نہیں کیا جائے گا۔ قبل از وقت انتخابات کے حوالے سے بھی میاں نواز شریف کا یہ کہنا تھا کہ کوئی سوچے بھی نہ کہ مقررہ مدت سے پہلے الیکشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ مریم نواز نے بھی میاں نواز شریف کا جب لہجہ سخت ہوا جتھوں کے حوالے سے تو اس کی تائید کی، اور باقی جو افراد وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنا جو ہے مثبت رائے اس حوالے سے دی۔ جی سید کوثر کاظمی اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کون تنقید کر رہا ہے وہ بھی جانیے۔ لندن میں تماشا ادارے مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہو رہا، سربراہ تحریک انصاف عمران خان کی حریفوں پر کڑی تنقید۔ کہا جن لوگوں نے ساری زندگی میرٹ پر کام نہیں کیا ان سے اہم تعیناتی پر کیا توقع رکھی جا سکتی ہے۔ یہاں طاقتور ڈاکوؤں سے ڈیل کی جاتی ہے، ان کو جیلوں میں نہیں سزا نہیں ملتی، ڈیل ہوتی ہے۔ تو یہ ڈیل ہو رہی ہے سارے ملک کے سامنے۔ اب یہ جو کر رہے ہیں، یہ جو اب لندن میں ہو رہا ہے تماشا، یہ ادارے مضبوط کرنے کے لیے نہیں ہو رہا۔ جو انہوں نے زندگی میں میرٹ پہ کچھ کیا نہیں، کیا یہ اس ملک کے اندر آرمی چیف کی سلیکشن ٹھیک کرے گا؟ یہ بالکل نہیں کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی آرمی، میں کہتا ہوں جو میرٹ پہ آرمی چیف ہے اس کو بننا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا جرمن میڈیا کو انٹرویو، حکومت پر پھر قتل کی سازش کا الزام لگا گئے، لیکن ثبوت نہ بتانے پر اینکر نے عمران خان کی باتوں کو شرلاک ہومز کی جاسوسی سے تعبیر کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف کسی بھی سوال کا خاطر خواہ جواب نہ دے پائے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اپنی سیکیورٹی سے بہت پریشان۔ سابق وزیر اعظم نے زمان پارک میں اپنی رہائش گاہ کی سیکیورٹی کے لیے خیبر پختونخوا سے پولیس کمانڈوز بلوا لیے۔ رہائش گاہ کے باہر سیمنٹ کے بلاکس اور رکاوٹیں بھی لگا دی گئیں۔ دوسری جانب فائرنگ کی تحقیقات کرنے والی JIT ایک دن بعد ہی تبدیل بھی کر دی گئی۔ جہانگیر خان رپورٹ کریں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے پریشانی بڑھنے لگی۔ زمان پارک رہائش گاہ میں مقیم کپتان نے سیکیورٹی کے لیے خیبر پختونخوا پولیس کے کمانڈوز منگوا لیے۔
15 कमांडोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ के घर की सिक्योरिटी पर तैनात कर दिए गए हैं, जबकि सीमेंट के ब्लॉक्स रखकर हिफाजती दीवार बनाई गई है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की रहायशगाह पर आने और जाने वालों का रिकॉर्ड रखने के लिए खुसूसी डेस्क भी कायम कर दिया गया है। दूसरी तरफ पीटीआई मार्च पर फायरिंग की तहकीकात करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम में एक दिन बाद ही तब्दीली कर दी गई। जेआईटी की सरबराही अब आरपीओ डीजी खान सैयद खुर्रम अली को सौंपी गई है। डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट तारक रुस्तम चौहान बतौर मेंबर काम करेंगे। सीटीडी के अफसरान को भी जेआईटी का हिस्सा बनाया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तरका तहकीकाती टीम का छठा रुकन जरूरत के मुताबिक शामिल किया जा सकेगा। रिपोर्टर दानिश मुनीर के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। पंजाब पुलिस ने हमारी मर्जी की एफआईआर नहीं काटी, शाह महमूद कुरैशी ने शिकवे दोहरा दिए। कहा, अदालत से इंसाफ की तवक्को है। असद उमर कहते हैं कि इमरान खान पर बुज़दिलाना हमला किया गया, चीफ जस्टिस को मामले का नोटिस लेना चाहिए। एफआईआर पर खिलाड़ियों के खदशात। शाह महमूद कुरैशी ने एक बार फिर दावा किया कि पंजाब पुलिस हुकूमत के ताबे नहीं, मामला अदालत लेकर जा रहे हैं जहां से इंसाफ की तवक्को है। हैरानी की बात यह है कि हुकूमत हमारी है, पुलिस ताबे है पंजाब हुकूमत के, लेकिन इसके बावजूद बेबस है। जज साहब ने पुलिस से रिमार्क्स मांगे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। असद उमर ने टोबा में कारकुनान से खिताब में कहा कि बुज़दिलाना हमले के बावजूद हौसले पस्त नहीं होंगे। उस पदकातलाना हमला होता है, साजिश के तहत गोलियां चलाई जाती है। चीफ जस्टिस साहब, कौम आपको देख रही है, आपसे मुतालबा कर रही है। असद उमर ने मजीद कहा कि लॉन्ग मार्च अब रुकेगा नहीं। काफिला अब जीटी रोड के बजाय फैसलाबाद, झंग और चिन्योड़ से होता हुआ जाएगा। अब देखिए पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है। इमरान खान के एस्टेब्लिशमेंट से राबितों का राज फाश करने वाले तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम रोखड़ी की पार्टी रुकनियत खत्म कर दी गई। खुर्रम रोखड़ी ने समा के प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान की ख्वाहिश पर राबितों के लिए उन्हें चुना गया। तीसरी मुलाकात में सलमान अहमद भी उनके साथ थे। इमरान खान का नुमाइंदा बन कर गए थे। मुझे पार्टी के इदारों के खिलाफ बयानिए से मसला था, चाहता था गलतफहमियां दूर हों, ऐसा उन्होंने बताया। कहा गया कि जी फैसल को कन्फ्रंट कीजिए, खान कहता है। मैंने कहा नॉट एन इशू। मेजर जनरल फैसल नसीर आपके मुताबिक आपको कहते हैं कि जी तहरीक इंसाफ वालों को ये कहें कि जनाब फौज के हवाले से स्टेज पर बुरा भला कहना जो है वो छोड़ दीजिए, आप उसके बाद वापस आते हैं, ये बात भी आप खान साहब को पहुंचाते हैं? तो ये बात हमारी जो टीम, हम बैठते हैं बनीगाला में, हम 4 मेंबर्स की टीम है, हम वहाँ के डिस्कस करता हूँ। अब ये एक इस्टेब्लिश हो चुका है। अब ये चीज़ जब हो गई कि अब सलमान कर रहे हैं सारी चीज़ को मैनेज, हमारा फिर टीम का बना दे सेट कि आपको मिलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, गो अगेन। मैंने टाइम लिया उनसे, तो उन्होंने कहा आप आ जाएं। तो मेरे जहन में आया कि मैं अकेला ना जाऊं। नाउ आई कॉल जो है सलमान को क्या से कि आई वांट कि आप मेरे साथ आएं। मुझे फिर आता है सलमान का कॉल। उन्हें कहा कि मुझे खान को बता के मिल के आना चाहिए। मैंने कहा जस्टिफाइड। नाउ आई एम टेकिंग हिम एज ए रेप ऑफ खान। अब मैं जब गया हूँ उस मुलाकात के अंदर, तो मैं जाके साइड के ऊपर बैठ जाता हूँ, बिकॉज नाउ आई एम बिल्कुल न्यूट्रल। मेरा इशू यही था कि हम जिस तरीके से मूव कर रहे हैं, या पीछे बड़े अरसे से जो काम आ रहा है, जो यूथ है उसको, उसके अंदर एक चीज़ ऐसी आ रही है कि वो फौज के खिलाफ उनकी ग्रीवियंसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। लॉन्ग मार्च से रास्तों की बंदिश का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि रास्ते खुलवाना हुकूमत का काम है, मजिस्ट्रेट को ये डर नहीं होना चाहिए कल किसी और की हुकूमत आ जाएगी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल रशीद। पीटीआई के लॉन्ग मार्च से शहरियों के साथ साथ ताजर भी परेशान। इस्लामाबाद में पीटीआई के मुमकिना धरने के खिलाफ ताजरों की वेलफेयर तंजीम ने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। हुकूमत की तब्दीली के बाद से एहतजाज के नाम पर सड़कें बंद होने से बुनियादी हकूक मुतासर हो रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वज़ारत दाखिला हुकाम को पीर के रोज तलब कर लिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लॉन्ग मार्च से पहले पीटीआई कारकुन की गिरफ्तारी तो कलअदम करार दे दी, साथ ही ये भी वाजे कर दिया कि सड़कें किसी सूरत बंद नहीं होंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को तलब करके कहा, बंद रास्ते खुलवाना हुकूमत का काम है, रास्ते धरने से बंद हों या कंटेनर से, इंतजामिया खुलवाए और जो कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई करके अदालत में चालान पेश करें। कहा, मुकदमात बन जाते हैं और चलते रहते हैं, फिर हुकूमत तब्दील हो जाती है। मजिस्ट्रेट को कहें 24-24 घंटे काम करके मुकदमात सुने और जल्दी फैसले करें। अगर मजिस्ट्रेट डरते रहेंगे कि कल मुकदमात में मुलव्वस अफराद की हुकूमत आ जाएगी तो ऐसे काम नहीं चलेगा। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने भी रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान जिले इंतजामिया की सख्त सरजनश कर दी। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने कमिश्नर रावलपिंडी को मुखातिब करते हुए कहा, जब रास्ते बंद होने से लोग सड़कों पर ख्वार हो रहे थे तो क्या इंतजामिया सो रही थी? रास्ते बंद करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? इंतजामिया से 16 नवंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली गई। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। गवर्नर पंजाब ने कहा, एहतजाज के नाम पर रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। रास्ते बंद करने वालों को हुकूमत सहूलत फराहम नहीं कर सकती। बलीगुर रहमान ने साफ साफ बता दिया, बोले चंद लोग दाखिली रास्तों पर बंदिशें खड़ी कर रहे हैं। अमन व अमान की सूरत हाल खराब हो तो गवर्नर राज लग सकता है। गवर्नर रूल का ख्वाब एक कोई विशफुल थिंकिंग नहीं हो सकती, ये एक ड्राउना ख्वाब हो सकता है। इट कैन बी ए नाइटमेयर, इट कांट बी समथिंग वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि ये सिर्फ उस वक्त किया जाता है कि जब अमन व अमान की हालत बहुत बिगड़ रही है। और सूबे का आइनी सरबराह होने की हैसियत से मैंने ज़रूर इस बात का नोटिस लिया है कि लोगों के जो रास्ते बंद किए गए, हमने यहाँ देखा मोटरवेज़ के दाखिली और खारजी पॉइंट्स पे, एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स पे, वहाँ पे चंद लोग, 2, 3, 4 लोग जो हैं, उन्होंने आके 4-4 घंटे, 3-3 घंटे अपनी कार टेढ़ी करके खड़ी कर दी। पीछे वो लोग, किसी ने अस्पताल पहुंचना था, किसी ने मीटिंग में पहुंचना था, किसी ने स्कूल में पहुंचना था, एंड इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुल्तान गैरजन का दौरा, मादरे वतन की खिदमत के लिए स्ट्राइक फॉर्मेशंस की खिदमात को खूब सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुल्तान गैरजन में अफसरान और जवानों से की मुलाकात। स्ट्राइक फॉर्मेशंस के दस्तों के साथ गुफ्तगू में पाक वतन के लिए उनकी गैर मामूली खिदमात को सराहा। सिपा सालार ने स्ट्राइक फॉर्मेशंस की पेशा वराना काबिलियत की भी तारीफ की। मुबैना वीडियो की तहकीकात करने वाली स्पेशल कमेटी का कहना है कि आजम स्वाति तहकीकात से पीछे हटेंगे तो फिर और बहुत सी बातें बनेंगी, जबकि DGFIA ने तो वीडियो जाली ही नहीं भारतीय होने का इंकशाफ भी कर दिया। PTI सेनेटर्स स्पेशल कमेटी के इजलास में नहीं आए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। आजम स्वाति को साथी सेनेटर्स का इंसाफ दिलाने का मिशन। ईवान बाला की खसूसी कमेटी की दूसरी बैठक लगाई, लेकिन मुतासिरा सेनेटर आजम स्वाति फिर न आए। कमेटी कन्वीनर अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, इनसे दरखास्त थी कि कमेटी में आकर इल्जामात के सबूत दें, लेकिन 4 मोजिज सेनेटर्स का आजम स्वाति से राब्ता करना भी किसी काम न आया। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, हम जो उसके दिफा के लिए उठ खड़े हुए हैं या कमेटी का इजलास कर रहे हैं, वो अगर खुद तशरीफ नहीं लाएंगे तो फिर क्या होगा? अगर वो पीछे हटेंगे तो फिर बहुत सारी बातें सामने आएंगी कि ये बात सही भी है या गलत है। DGFIA मोहसिन भट्ट ने कमेटी को बताया कि वजारत दाखिला की हिदायत पर की गई इंक्वायरी में वीडियो फेक निकली, साथ ही एक बड़ा इंकशाफ भी कर दिया। एक वीडियो मार्केट में और घर पे अवेलेबल है जो शायद इंडियन है, उसको डॉक्टर किया या 2 वीडियोज हैं एक्चुअली। स्पेशल कमेटी में शिरकत से भागने वाली PTI के 1.5 दर्जन सेनेटर इसी मामले पर एहतजाज के लिए सड़क पर निकल आए। पार्लियामेंट हाउस से मार्च करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और नारेबाजी करके चलते बने। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। सहाफ़ी अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ या नहीं? केन्या में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पिम्स हुकाम को नहीं मिली, इसीलिए हतमी नतीजे पर पहुंचना एक मुश्किल बन गया है। डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर खालिद मसूद ने समा से गुफ्तगू में बताया कि अरशद शरीफ की मौत गोली लगने से ही हुई।
हतमी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स के जवाबात नहीं आए जो हमारे यहाँ से सैंपल्स गए थे। वो सैंपल्स जब आएंगे तो उसी वक्त हम अपनी मेडिकल बोर्ड को दोबारा बैठाएंगे और मेडिकल बोर्ड उनका तफसीली जवाब देंगे। नंबर 1 ये तहकीकात तो की जा रही हैं। नंबर 2 वो मुशाबियत बहुत रखती हैं, जो हमारे साथ पिक्चर हैं वो उन्हीं पिक्चर से मिलती जुलती हैं। तशद्दुद हुआ है, नहीं हुआ, कितनी देर पहले हुआ है, कैसे हुआ है, कितना लंबा हुआ है, तो इसी के लिए फॉरेंसिक लैब्स और ये मेडिकल बोर्ड बिठाया गया है। तो वही जब एक बार हमें साइंटिफिक तरीके से जवाब दे देंगे तो हम आपको डिक्लेयर कर देंगे। एज ए लेमैन अगर मैं आपको कहूँ तो हो सकता है, हो सकता नहीं भी है। उसके रिपोर्ट के मुताबिक उनको 2 गोलियां लगी हैं और उसके अलावा तकरीबन 8 से 12 के करीब निशानात हैं। वर्बली किसी चीज़ का भी नहीं कहते, इसीलिए हमने ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट शाया की और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक ही हमने कहा मुतल्लिका थाना हमें फिर वो सबमिट करेगा और फिर हम उसके बाद मेडिकल बोर्ड को बिठाएंगे। जो बताई गई हैं 2 गोलियाँ लगी हुई हैं। थोड़ा सा मैं आपको अगर कानूनी रास्ता बता दूं, वो मदर हैं, उनका बिल्कुल हक है। कुछ कानूनी तकाजे होते हैं। मुझे एप्लीकेशन दी थी पुलिस स्टेशन रमना ने और हमने उसी दिन उसको ये रिपोर्ट शाम को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे दी थी। तो वो उनसे किसी भी वक्त ले सकते हैं और अगर वो नहीं उधर से नहीं मिल रहे तो आ जाए, अप्रोच कर ले, हम उनको दे देंगे। भारतीय मजालिम के खिलाफ कश्मीरी रहनुमा यकज़बां, महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार के ज़ेर इंतज़ाम इंतखाबात के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। कहा बीजेपी की फाशिस्ट हुकूमत कश्मीरियों की बदतरीन दुश्मन है। और ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध का सूबे के अस्पतालों में इमरजेंसी बंद करने का ऐलान। ज़ेर हिरासत वर्कर्स को फौरी रिहा करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन 3 माह के लिए मुलतवी करने के फैसले से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है। खत के मुताबिक सिंध काबीना ने इलेक्शन के इल्तिवा की मंजूरी दी है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद आलम। सिंध हुकूमत ने कराची में बल्दियाती इंतखाब का इनेकाद चौथी बार मुलतवी करने का फैसला कर लिया है। महकमा बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है जिसमें कहा गया है कि सिंध काबीना ने कराची में बल्दियाती इलेक्शन 3 माह तक मुलतवी करने की तजवीज़ की मंजूरी दे दी है। इलेक्शन के बार बार इल्तिवा पर शहरियों ने भी मायूसी का इजहार किया है। बल्दियाती इलेक्शन हो तो काउंसलर बने, मोहल्ला पड़ोस के हालात सही हो, पानी गैस का मसला हल हो जाए। हर दफ़ा यही सोचते हैं कि शायद इलेक्शन होंगे और अच्छे दिन आएंगे, हमारा कराची अच्छा हो जाएगा, लेकिन आगे बढ़े जा रहे हैं इलेक्शन। बल्दियाती इलेक्शन के मुसलसल इल्तिवा पर अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से खाइफ है, अब तारीखों से काम नहीं चलेगा। 15 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने भी हमें बुलाया हुआ है और पार्टियों को भी बुलाया है। अब ये तारीखें नहीं चलेंगी, अब एक मुतय्यन तौर पर जो चीज तय होगी फिर सब उसको फॉलो करेंगे। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी कहते हैं सिंध से पुलिस इस्लामाबाद भेजी जा सकती है तो दीगर सूबों से भी यहाँ लाई जा सकती है। जिन इलाकों में फ्लड नहीं आया हुआ पाकिस्तान के, वहाँ से अगर सिंध से इस्लामाबाद पुलिस जा सकती है तो पंजाब से, केपी से, आजाद कश्मीर से, बलोचिस्तान से पुलिस कराची क्यों नहीं आ सकती। बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर चीफ सेक्रेटरी सिंध का कहना था इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा उस पर तो अमल दरामद करना होता है। इलेक्शन का फैसला तो इलेक्शन कमीशन ही करता है। हफ्ते को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख ने भी बल्दियाती इलेक्शन के इल्तिवा पर बरहमी का इजहार किया था। कैमरामैन एम कामरान और साथी रिपोर्टर इरफानुल हक के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची पुलिस ने 4 रोज से धरने पर बैठे हेल्थ वर्कर्स को वाटर कैनन चलाकर मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने मुतअद्दिद हेल्थ वर्कर्स को हिरासत में भी लिया। कराची पुलिस ने 4 रोज से सरापा एहतजाज हेल्थ वर्कर्स पर पानी की तोप चला दी। वाटर कैनन का चलना था कि डीजे साइंस कॉलेज के बाहर धरने में मौजूद मुजाहिरीन तितर बितर हो गए। पुलिस ने मुतअद्दिद हेल्थ वर्कर्स को हिरासत में ले लिया। पुलिस एहलकारों ने सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर धरना देने वाली खवातीन हेल्थ वर्कर्स की भी पकड़ धकड़ की। खवातीन पुलिस एहलकारों का कहना था कि खवातीन हेल्थ वर्कर्स ने ब्लेड और सिरिंजेस से हमला किया। किसी पर तो मतलब सिरिंजेस से वार किए हैं, ब्लेड उनके पास थी, वो पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी। ये हमारी चोटें हैं, सही है, हमारे स्कार्फ उतार दिए गए, हमारे बालों को खींचा गया है। रिस्क अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी न होने पर दोपहर के वक्त हेल्थ वर्कर्स ने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की थी। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में हाथापाई भी हुई थी।
हेल्थ वर्कर्स का कहना था मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। अभी 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमारा रिस्क अलाउंस फौरी तौर पर बहाल किया जाए। दीगर जो हमारे मसाइल हैं उनके लिए हम हुकूमत को टाइम दे रहे हैं। हम CM हाउस जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से एहतजाज के लिए काम छोड़ने को बिला जवाब समझते हैं। ये जो एक और कॉन्सेप्ट आ गया है कि तनख्वाह भी हमारे हिसाब से होनी चाहिए कि हमें फला अलाउंस दो, फला अलाउंस दो, फला अलाउंस दो, मैं इससे भी इत्तफाक नहीं करता। सिंध हुकूमत ने हेल्थ रिस्क अलाउंस के मामले पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस से मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी है, जिसमें 3 वुज़रा और 2 सेक्रेटरी शामिल हैं। कमेटी मुज़ाकरात के बाद अपनी सिफारिशात पेश करेगी। कैमरामैन अली मुशर्रफ और कामरानुद्दीन के साथ सैयदा ज़ीनत, समा, कराची। तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च की हिकमत अमली तब्दील। अब मार्च सड़कों पर नहीं चलेगा बल्कि जलसे होंगे। माजरा क्या है जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे क़ज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। क़ज़ाफ़ी भट्ट, ये अचानक हिकमत अमली क्यों तब्दील की गई है? देखिए, इसकी 2 वजूहात है जी। एक तो इमरान खान खुद इस लॉन्ग मार्च में शरीक हुए, दूसरी लोगों की जो अदम दिलचस्पी है उसकी वजह से ये हिकमत अमली बदली गई है। और अब लॉन्ग मार्च जो है वो सड़कों पर नहीं बल्कि सिर्फ जो मखसूस पॉइंट्स हैं उसके ऊपर जलसे किए जाएंगे। और कल वजीराबाद के अंदर ही रह गया, आज गुजरात के अंदर चला और गुजरात के अंदर ही लॉन्ग मार्च खत्म हो गया और कल जो है आगे जाएगा और वहीं पर खत्म हो जाएगा। सिर्फ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका क़ज़ाफ़ी भट्ट। कराची के इलाके बहादुराबाद में 14 साल लड़के को मुर्दा हालत में छोड़कर जाने वाली खातून का सुराग मिल गया। घरेलू मुलाजिम को तशद्दुद करके हलाक किया गया। पुलिस ने खातून और इसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर हुसैन। जुमेरात की सुबह एक अधेड़ उम्र खातून बहादुराबाद के इस अस्पताल में एक 14 साल लड़के को अपनी गाड़ी में डाल कर लाई थी। जब अस्पताल वालों ने लड़का मुर्दा हालत में होने का बताया तो वो छोड़कर फरार हो गई। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से गाड़ी का पता चलाया तो गाड़ी फरहान जावेद नामी बिल्डर की निकली और लड़के को अस्पताल लाने वाली खातून उसी बिल्डर की वालदा समरीन जावेद थीं। पुलिस ने कहा है कि 14 साल मुतवफ़ी आफ्ताब बिल्डर का घरेलू मुलाजिम था, जिसे 20,000 रुपए चोरी करने पर बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और बेहोश हो जाने के बाद इब्तदा में घर में ही तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की गई थी। होश में न आने पर खातून बच्चे को अस्पताल लाई थी। पुलिस ने फरहान जावेद और उसकी वालदा समरीन जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। कराची पुलिस के सरबराह जावेद आलमोडू कहते हैं, पुलिस ने खातून को बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की टीम पूरी आफ्टरनून काम करती रही और रात तक अल्लाह के फजल से हमने उस क्राइम में मुलविस खातून जो कि मालकन थी और उसका बेटा फरहान और गाड़ी वो सब बरामद कर ली, उनको गिरफ्तार किया और बरामद कर ली। SSP ईस्ट अब्दुल रहीम शिराजी के मुताबिक दोनों मुल्जिमान ने आफ्ताब पर तशद्दुद करने का एतराफ़ कर लिया है। 14 साल आफ्ताब 6 माह पहले ही रोजगार के लिए पंजाब से कराची आया था। शोएब और सानिया की अलहदगी की खबरें, अफवाहें और कयास आराइयाँ, इस सब का बाजार गर्म है। इंस्टा पोस्ट पर मद्दाहों ने कमेंट्स के अंबार लगा दिए। शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की अलहदगी की खबरें, अफवाहों और कयास आराइयों को ब्रेक न लग सकी। शोएब मलिक का भी तस्दीक या तरदीद से गुरेज। समा से गुफ्तगू में कौमी प्लेयर ने खबरों को नजरअंदाज करने का मशवरा दिया। तलाक की खबरें आने के बाद सानिया मिर्जा ने पहली तस्वीर शेयर कर दी। इंस्टाग्राम पर तस्वीर में भारतीय टेनिस स्टार स्पोर्ट्स सूट पहने हुए ट्रैक पर चल रही हैं। चेहरे पर मुस्कान है। कैप्शन लिखने के बजाय सिर्फ इमोजीज बना दिए। इंस्टा पोस्ट पर मद्दाहों ने कमेंट्स के अंबार लगा दिए। तलाक की खबरों की तस्दीक करने की कोशिश की, लेकिन सानिया ने किसी को जवाब नहीं दिया। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शोएब और सानिया ने 12 साल बाद अलहदगी का फैसला किया है। कई मुआहिदे हैं जो दोनों स्टार्स ने मुकम्मल करने हैं, जबकि बेटे के लिए दोनों को पेरेंट्स के तौर पर मामलात चलाएंगे। इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।